Friends, this is Gyanesh Dikshit. Here we are starting exercise 6.5. So starting from question 1, which is sides of triangles are given below. Determine which of them are right angle triangles. In case of a right angle triangle, write the length of its hypotenuse. So first part is 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter. These are three sides. So hypotenuse is the longest side. So firstly we do the square of hypotenuse, which is 25. 25 square is 625. Okay, now we are adding squares of both the sides remaining, that is 7 square plus 24 square. 7 square is 49 plus 24 square, that is 576. Now on adding we get 625. Now we see both the sums are equal, that means here we get therefore 25 square equals to 7 square plus 24 square, which satisfies the Pythagoras theorem, that is the square of one side of any triangle is equal to the sum of the squares of other two sides. Then the angle opposite to the longest side, that is 90 degrees. So it is right triangle. So therefore this is a right triangle. Yeah, these sides are having right angle triangle. So therefore these sides that is कौन सी sides हैं 7 centimeter, 24 centimeter and 25 centimeter make a right angle triangle. Make a right angle triangle. Now we have to write here hypotenuse. So its hypotenuse is that is longest side, so it is 25 centimeter. Clear? Now we do the next part, second, third, fourth. There are 4 parts, 2 parts I am solving, remaining 2 parts do yourself. Okay, so I am solving third part. Firstly third part, second and fourth do yourself. So third part is 50 centimeter, 80 centimeter and 100 centimeter, these three sides. So firstly we do the square of longest side, which is 100. So that's square, 100 square is 10,000. Clear? And sum of the squares of other two sides, which is 50 square plus 80 square. Now 50 square, 5 square is 25 and 2500 plus 80 square is 6400. So add both, 459, 628, so it is 8900. Now we see both the values are not equal. So therefore we can write 100 square is not equal to 50 square plus 80 square. Clear? Means ये Pythagoras theorem verify नहीं कर रहा है. This means these sides are not making a right angle triangle. So therefore these sides do not make a right angle triangle. A right angled triangle. Can we write triangle by this way? So remaining second and fourth do yourself. So we are starting question number 2, which is PQR is a triangle, right angle at P. So we are drawing a right angle triangle in which P is 90 degree. P पे 90 degree है. By this way, this is P. Q and R anywhere we can assume. So here, and M is the point on QR such that PM perpendicular on QR. PM perpendicular on QR means from P we draw a perpendicular on hypotenuse. So it is M. Clear? After this, point on QR such that PM perpendicular QR, so that PM square equals to QM into MR. So here given is triangle PQR. Triangle PQR is right triangle right angle at P. Right angled at P. P पे 90 है and PM is perpendicular on QR. It is given. Now we have to prove. So to prove PM square equals to QM into MR. Clear? So here we have to prove PM square equal to QM and MR. See now, PM this one side, this side is in both triangles. QM this one side means this triangle we have to take, and MR this one, that means this one.
So we have to prove these two smaller triangles similar. For this, if we assume this angle as x, this angle as y, and this one angle is z, इनको हमने एक्स वाई जेड मान लिया थ्री एंगल्स को. नाउ प्रूफ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर करना है. ठीक है, एक एंगल तो 90 मिल जाएगा क्योंकि बोथ साइड ही 90 ही होगा एम पे, और एक एंगल हमें और इक्वल लाना है. सो फॉर दिस इन ट्राइंगल पी एम क्यू यूज एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एक्स प्लस वाई प्लस 90 इक्वल्स टू 180 बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी. In short, we can write ASP. Clear? Angle sum property. So, if we separate from here x को separate करें, 90 goes to here, so it will be minus. So 180 minus 90 is 90, and y is minus. So x equals to 90 minus y. We can assume it equation 1. Now, after this, we can solve this one angle RPQ. Since angle RPQ, which is equals to y plus z, and its value is 90 because it is a right triangle. Reason आप लिख सकते हो, since triangle PQR is right triangle, अगर ये right triangle है तो इसका एंगल 90 होगा. एक एंगल P given 90. Okay, here it is given right angle at P. So now y plus z is 90. Now if we separate from here z, so it will be 90 minus y. This is equation 2. Now see equation 1 and 2 both RHS are equal. That means their LHS should be equal. So from equation 1 and 2, so here we got x equals to z. Now see this one angle x and this one angle z, these two angles are equal. So if we draw these two triangles separately, अगर मैं दोनों triangles को separate draw करें like this, I am drawing here. There are two triangles. सिमिलर प्रूफ करना है, मैंने दो ट्राइंगल एक जैसे बना लिया. देखिए दोनों ट्राइंगल्स में m पे 90 है, सो दीज आर 90 डिग्री, these are as m, and in both the triangles x is same. So here we are writing x and here we are writing z. X and z are equal. Here we proved x equal to z. X angle in which point? q पे x है तो कौन सा पॉइंट बच गया? q and p. So it is p. सेम है z किस पॉइंट पे? p पे, तो यहाँ पे p आ गया. अब कौन सा पॉइंट बच गया? r. Clear? Now these two triangles are similar. So in triangle RMP and triangle PMQ, here angle M equals to angle M, each 90, and angle Z in first, which is equals to angle X. From equation, इसकी equation मान लीजिए third. So from equation 3 or proved also we can write. Clear? Now therefore triangle RMP similar to triangle PMQ by double A, because two angles are equal. So by double A similarity. Clear? Now if these two triangles are similar, then their corresponding sides ratio are equal. That means here we have to prove PM square. तो PM हमें दोनों में चाहिए. Here PM is here, so we are writing PM upon. Here PM is base. Now here it is equal to QM or MQ we can write. So it is QM equal to. Now we want PM square. PM square we have to prove ना. So PM अब हमें यहाँ लिखना है. अभी PM कौन से ट्राइंगल की साइड है? सेकंड ट्राइंगल. तो इसमें PM कहाँ पे? परपेंडिकुलर. तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? MR या फिर RM. So we are writing MR by CPST, corresponding parts of similar triangle. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो वी कैन गेट PM स्क्वायर इक्वल्स टू QM into MR. दिस इज क्वेश्चन 2. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फॉर क्वेश्चन थर्ड विच इज again I think same question is there. In the following figure ABD is a triangle right angled at A. एक राइट ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल कौन से पॉइंट पे? A पे. I'm drawing by this way. A is 90, triangle is ABD, so I'm assuming B and D points. After this, and AC perpendicular on BD from A. In second question also there is a perpendicular. AC is perpendicular on BD. So that there are three parts. So firstly we are writing given. So what is given? Triangle ABC is right angle triangle.
ABC is a right angled at A. After this, and AC perpendicular on BD. After this, to prove, there are three parts. First part is AB square equal to BC into CD. Second part is AC square equals to BC into DC. And third part is AD square equal to BD into CD. Third part is AD square equals to BD into CD. Clear? Now after this we have to, okay, so proof. Here for this we are seeing firstly AB square equals to BC into CD. See now, AB is the side, this one, BC into CD, BC is this one, so this triangle we have to take, and CD this one. That means we have to take these two triangles similar, smaller one. Next one is AB square BC and CD. Okay. Now second is BAC square BC DC, AC square this one, BC this one, and DC this one. That means again these two triangles. Next is AD square BD CD, AD square this one AD, and BD whole triangle, तो whole triangle लेना है, and CD, that means this one, this is smaller triangle and whole triangle. So firstly we are drawing these two triangles separately. How it is? जस्ट लाइक प्रूविंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जैसे पाइथागोरस थ्योरम हमने प्रूव किया था, सेम वैसे ही जो दो पार्ट्स हैं ट्राइंगल उनके हमने सेपरेट ट्राइंगल बना लिए. देखिए दोनों में 90 कहाँ पे, सी पॉइंट पे, तो यहाँ हमने दोनों ट्राइंगल्स में सी पॉइंट पे 90 बना लिया. क्लियर है? सी पॉइंट पे 90 बना लिया. अब अगर हम ये टॉप वाला ट्राइंगल पहले देखें तो इसमें डी है यहाँ पे, तो यहाँ पे टॉप पे क्या आ जाएगा, डी. ये डी आ गया, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया. क्लियर? अब बचा कौन सा एंगल, देखो डी और सी आ गया, अब क्या बचा, ए पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट ए आ गया. अब ये वाला जब हम ट्राइंगल लें तो इसमें बी एंगल कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया एंगल बी, मीन्स दिस वन. क्लियर? नाउ व्हाट इज लेफ्ट, बी और सी आ गया, ये दोनों पॉइंट से आ गए, क्या बचा, पॉइंट ए, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट ए. क्लियर? नाउ फर्स्ट पार्ट है हमारा ए बी स्क्वायर बी सी और सी डी. देखिए ए बी किस में आ रहा है, ए बी यहाँ आ रहा है, ए बी स्क्वायर बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है और स्मॉलर में भी आ रहा है. बी सी और सी डी, तो बी सी यहाँ आ रहा है स्मॉलर वाले में और सी डी आ रहा है इस स्मॉलर में. दैट मीन्स हमें ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर करना है इन दोनों को ना. तो इसके लिए पहले हम क्या करें, देखिए इन दोनों को सिमिलर करने के लिए बेटर ये कि हम कई मेथड्स हैं इसमें. जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया था, उसमें हमने एक एंगल एक्स वाई जेड माना था, उस टाइप से भी कर सकते हैं. या फिर अगर हम होल ट्राइंगल को पहले स्मॉलर वन के सिमिलर प्रूफ करें और इस होल ट्राइंगल को इस वाले के सिमिलर कर दें, इट मीन्स हमें तीनों ट्राइंगल सिमिलर मिल जाएंगे. क्लियर है? सो फॉर दिस फर्स्टली वी आर डूइंग सिमिलरिटी प्रूफ कर रहे हैं इसमें. इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल डी सी ए इनको सिमिलर कर रहे हैं. तो इसमें एंगल ए वाला 90 और ये एंगल सी 90 है दोनों, तो इसमें एंगल ए को क्या कहेंगे, डी ए बी. सो एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, ईच 90. क्लियर? नेक्स्ट वन इज एंगल डी कॉमन है, डी पे सिंगल एंगल है, सो वी आर एज्यूमिंग ओनली एंगल डी आर राइटिंग. सो एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, दैट इज कॉमन. दैट मीन्स वी कैन राइट देयरफॉर triangle DAB similar to triangle DCA. Clear? DAB and DCA. Now this is by double A similarity. So this question we are assuming first. After this we are proving this first triangle and last triangle similar. So in triangle DAB and triangle ACB. So in these two triangles again 90 angle A equal to angle C. So angle DAB equal to angle ACB. These are 90. So we can write each 90 degree. And angle B is common. So angle B equals to angle B. Clear? This is common. Now again these two triangles similar. So triangle DAB similar to triangle ACB by double A similarity again. So this is equation 2. Now from equation 1 and 2 we can write from equation 1 and 2. See now here triangle DAB is similar to both the triangles, that means these two triangles are also similar. So therefore triangle DCA similar
to triangle ACB. Equation 3. So now students, firstly we are proving first part, which is part first, that is here see first part is AB square equals to BC into BD. BD था यहाँ पे, CD मैंने लिख दिया था, वो गलत था, ठीक है. Now here AB, BC and BD. Now see here AB is this one side, BC this one side and BD whole triangle. That means we have to take this whole triangle and this one smaller triangle. That means whole triangle is DAB and this one triangle is ACB. So here this one DAB and ACB. So from equation 2, since triangle DAB similar to triangle ACB, from equation 2, इक्वेशन 2 से हमने लिया तो सेकंड इक्वेशन में ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा. देखिए हमें इसमें ए बी चाहिए स्क्वायर ना, तो ए बी अगर हम इस ट्राइंगल में ले लें, बड़े ट्राइंगल में, और लास्ट में इन फर्स्ट और थर्ड ट्राइंगल ले रहे हैं, तो फर्स्ट ट्राइंगल में ए बी क्या है, बेस, तो यहाँ पर हमने लिया ए बी अपॉन, अब यहाँ बेस क्या है, बी सी या फिर सी बी, तो हमने लिख लिया बी सी इक्वल टू, देखिए हमें क्या चाहिए, बी डी. बी डी देखिए यहाँ क्या है, हाइपोटेनस, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ए बी, तो यहाँ आ गया बी डी अपॉन ए बी by CPST, corresponding parts of similar triangles. Now cross multiply कर लीजिए, so we get AB square equals to BC into BD. Clear? First part is done. Now for second part is here we have to prove AC square equals to BC into DC. AC square यानी कि AC दोनों में आ रहा है, तो हमें स्मॉलर वन दोनों ट्राइंगल इन दोनों को देखना है. तो ये किस में हमने प्रूव किया है, थर्ड इक्वेशन देखिएगा. सो third equation is triangle DCA similar to triangle ACB. Clear? It is from equation 3. हमने पहले तीनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर लिया है, फिर करना है प्रूफ. तो DC और ACB सिमिलर हो गया, मीन्स ये दोनों ट्राइंगल. अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए AC स्क्वायर. यहाँ पे AC देखिए कहाँ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस, और यहाँ पे AC कहाँ आ रहा है, परपेंडिकुलर. तो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो लेना है, तो पहले हमने बेस लिया यहाँ पे AC अपॉन CB या फिर BC, तो हमने लिखा है AC अपॉन BC इक्वल टू, दूसरा क्या लेना है, परपेंडिकुलर, दैट इज CD अपॉन AC या DC अपॉन AC बाय CPST सॉरी. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो वी गेट AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC. क्लियर? दिस इज सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD. AD स्क्वायर, AD कहाँ पे, देखिए AD दिस वन परपेंडिकुलर, यहाँ AD आ रहा है परपेंडिकुलर, और इसमें AD कहाँ आ रहा है, इस वाले में देखिए क्या है, हाइपोटेनस. तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लेके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है हमें. तो फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल कहाँ सिमिलर किया है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में होगा DAB ट्राइंगल सिमिलर टू DC है, तो इक्वेशन 1 लेनी है, ट्राइंगल DAB पहले, DAB सिमिलर टू ट्राइंगल DCA. This is from equation 1. Now we have DAB and DCA, फर्स्ट और सेकंड ट्राइंगल. प्रूफ क्या करना है, AD स्क्वायर. तो यहाँ पे AD कहाँ पे, परपेंडिकुलर, तो पहले परपेंडिकुलर ले लेते हैं, AD अपॉन परपेंडिकुलर इसका क्या है, DC या फिर CD. तो CD इक्वल टू, अब हमें फिर से AD स्क्वायर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, AD CD आ गया, क्या बचा, BD कहाँ है यहाँ पे, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस BD अपॉन AD, तो इट इज़ BD अपॉन AD. इट इज़ ऑल्सो बाई CPST. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD. नाउ दिस क्वेश्चन इज completed. Now move to next question, which is fourth. Very simple question and important also. ABC is an isosceles right triangle. ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है और आइसोसेलेस है. क्लियर? मीन्स टू साइड्स आर इक्वल. हाइपोटेनस तो इक्वल नहीं हो सकती, बड़ी साइड है, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है. राइट एंगल एट सी पे 90 दिया हुआ है, तो यहाँ A कर लिया मैंने, यहाँ पे B मान लिया, मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी. राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है. राइट एंगल एट C, प्रूव दैट AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर. AB स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, इसका डबल. सो गिवन यहाँ पे हो जाएगा, ट्राइंगल ABC इज राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल. right isosceles triangle right angled at C.
सी पे राइट एंगल है। और ओके देन टू प्रूव here we have to prove, what is to prove here, which one, AB square equals to 2AC square, 2AC square. So proof, firstly what is given here, triangle is isosceles na, since triangle ABC is isosceles triangle, right isosceles, so we are writing only isosceles triangle, therefore AC equal to BC, AC और BC दोनों साइड से इक्वल हो गई, इसे हमने इक्वेशन 1 कर दिया। नाउ इन राइट ट्राइंगल ACB पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिए। सो वी कैन राइट AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। Clear? Now AB square equals to, we have to prove 2AC square and here BC equals to AC, so put AC in the place of BC, that means we can write it also AC square. Okay, since BC equal to AC from equation 1, so we can write AB square equals to 2AC square. This is proved. क्वेश्चन नंबर 5 जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, कन्वर्स है इसका, उसमें ये आपको गिवन होगा, प्रूफ करना है कि वो राइट ट्राइंगल है। सो हियर गिवन, आई एम राइटिंग फर्स्टली गिवन, that is ABC is an isosceles triangle, ABC is an isosceles triangle, isosceles triangle दिया हुआ है, and here also it is given that AC equals to BC. If AB square equals to, and you have also given AB square equals to 2AC square, it is given, यहाँ प्रूफ किया है वो यहाँ गिवन है 2AC square, then प्रूफ करना है, to prove triangle ABC is right triangle, ABC is right angled triangle. Clear? So we draw a triangle, it is isosceles, it is given, so A B C, here it is not given 90, AC equal to BC given. Okay, so now firstly proof, since AB square equals to 2AC square, it is given. Okay, for 2AC square can be write AC square plus AC square, अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो 2AC square ही आ जाएगा ना। क्लियर? सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, फर्स्ट तो सेम रहने दिया, प्लस इस AC को हम BC लिख सकते हैं यहाँ पे, सो वी कैन राइट BC स्क्वायर, सिंस AC इक्वल टू BC इट इज़ गिवन। क्लियर? नाउ सी द स्क्वायर ऑफ वन साइड मीन्स AB is equal to the sum of squares of other two sides AC and BC, that means it is the converse of Pythagoras theorem. So therefore angle C is 90, क्योंकि एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? सो नाउ थ्योरम, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल, ये प्रूफ करना था। Clear? Now move to next question, which is 6th question is ABC is an equilateral triangle of side 2A. एक ट्राइंगल इक्विलैटरल गिवन है जिसकी साइड 2A दी हुई है। क्लियर? ऑल द साइड्स आर 2A, A B C, ये भी साइड 2A है, इट इज़ ऑल्सो 2A एंड इट इज़ ऑल्सो 2A. ओके, इट इज़ गिवन एंड वी हैव टू प्रूव, नो वी हैव टू फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, सारे एल्टीट्यूड हमें फाइंड करने हैं। एल्टीट्यूड सारे सेम होंगे क्योंकि जब साइड सेम है हर तरीके से एक ही एल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे, वो सारे के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? सो फॉर दिस इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A, दिस पॉइंट वी एज्यूम D, इस पॉइंट को हमने D मान लिया। क्लियर? सो हियर गिवन ABC is an equilateral triangle, and sides are given AB equal to BC equal to AC, which is given 2A, it is given, and to find altitude, length of altitude, सारे एल्टीट्यूड यहाँ पे सेम होंगे क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलैटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल
हेयर जस्ट लाइक ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अगर हम बी से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर तो वो भी सेम ही होगा इसकी लेंथ, ठीक है। तो हम एक ही फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। सो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया है हमने, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा वी ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ये ड्रॉ किया है। क्लियर। क्या हम इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की ज़रूरत वैसे है, कर भी सकते हो नहीं भी। एक्चुअली वी नो दैट एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाइसेक्ट द बेस, so directly we are using proof. Since altitude of equilateral triangle bisects the base, therefore we have BD equal to half of BC. BD equals to, therefore BD equals to half BC, और BC की वैल्यू क्या है 2a, सो हाफ इंटू 2a, दैट मीन्स इट इज़ इक्वल टू a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। सो BD की वैल्यू आ गई a। अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, इन राइट ट्राइंगल ADB यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो the square of one side means longer side, that is AB, so AB square equal to AD square plus BD square. Now put the values, AB square means 2A का square equal to AD square we have to find plus BD square, that is A square. Clear. So it is 4A square, this A square transfer to LHS, so it will be negative equals to AD square, that means it is equal to 3A square equal to AD square. Clear. तो इट इम्प्लाइज अगर हम ऐसे AD को सेपरेट कर लें तो 3 का रूट हो जाएगा, मीन्स √3a। क्लियर। यूनिट लेंथ यूनिट कुछ दी नहीं है तो आप यहाँ पे यूनिट लिख सकते हो, √3a यूनिट, और बाकी यूनिट्स भी सेम होंगी। ओके, मीन्स बाकी जो एल्टीट्यूड्स बचेंगे उसकी लेंथ भी सेम √3a होगा। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। रोम्बस के स्क्वायर साइड्स के स्क्वायर का सम और उसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। सो फॉर दिस वी आर ड्राइंग अ डायग्राम, एक रोम्बस ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द रोम्बस, वी आर अज्यूमिंग इट A, B, C and D. नाउ ज्वाइन द डायगोनल्स, डायगोनल ज्वाइन कर लिए, इसको पॉइंट मैंने O कह दिया, ठीक है, E90 होगा। सो नाउ गिवन ABCD इज़ अ रोम्बस, अगर ये रोम्बस है तो इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। और टू प्रूफ क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर और AD स्क्वायर, एनीथिंग वी कैन राइट, इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्लियर, ये प्रूफ करना है। सो नाउ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत इसमें नहीं है, सो प्रूफ। नाउ फॉर दिस, सिंस देयर इज़ वन प्रॉपर्टी, सिंस डायगोनल्स of rhombus, we know diagonals of rhombus bisect at right angle, at right angle, जो डायगोनल्स हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स जो AO है दैट इज़ हाफ ऑफ AC, वी कैन राइट AC अपॉन 2, एंड BO फॉर दिस वी कैन राइट BD अपॉन 2। क्लियर। एंड एंगल AOB, सारे एंगल 90 होंगे O पे जितने हैं, तो एंगल AOB 90, हम एक ही एंगल लिख ले रहे हैं। नाउ इन दिस ट्राइंगल वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। सो इन राइट ट्राइंगल AOB using Pythagoras theorem. Here one more thing, rhombus के all sides are equal, so we can write here also AB equals to BC equal to CD equal to AD. चलिए, in right triangle AOB we can write Pythagoras theorem, that is AB square equals to AO square plus BO square. Can we write it? AB is hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. So AB square equal to AO की वैल्यू क्या है, AC upon 2, so put it AC upon 2 whole square plus BO, that is BD upon 2 its whole square. Now simplify it, so it is AC square upon 4 plus BD square upon 4.
it is AB square. Here also AB square. Clear? So now can we take LCM? That is 4. So denominator is same, that means numerator as it is are added. So AC square plus BD square. Here it is AB square. So now 4 comes in multiply, so it is 4AB square equals to AC square plus BD square. Clear? Now for this 4AB square, can we break into it AB square plus AB square प्लस AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 बार लिख दिया इसको, 4AB स्क्वायर ही आ जाएगा जब हम इसे प्लस करेंगे. दैट इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. अब रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, मीन्स हम AB को BC के इक्वल भी रख सकते हैं, AB को CD को इक्वल भी और AB को ED के इक्वल भी. सो वी आर राइटिंग फर्स्ट AB, दैट इज AB सेम. सेकेंड AB वी कैन राइट BC, थर्ड AB वी कैन राइट CD एंड फोर्थ AB वी कैन राइट AD इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. यहाँ पे रीज़न लिखेंगे, सिंस साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD and equal to AD. Clear? So now this question is completed. Now move to next question, which is question number 8. Now in this in the given figure there is a diagram given. There is a triangle, sorry the line slant. So here this triangle is given, names are A, it is B and it is C. There is a point O in between the triangle, and from where 3 perpendiculars are drawn on these 3 sides. This is point O. Now this point is D, it is given, it is E and it is F. We have to prove here first part OA square plus OB square plus OC square. So for this we have to join ABC from O. ABC पॉइंट्स हैं उनको O से ज्वाइन कर देंगे. क्लियर? OB OC ऑल्सो. ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया. ये तीनों 90 डिग्री थे, 90 हैं ये. These are also right angle. Now diagram is completed. So I am writing in the given figure O is the point in the interior of a triangle ABC. So here given only perpendiculars are given. That means OD perpendicular on BC and OE perpendicular on AC and OF perpendicular on AB. OF perpendicular on AB. It is given. These 3 perpendiculars are given. And to prove, so here we have to prove first part OA square plus OB square plus OC square minus OD square minus OE square minus OF square equals to, we have to prove AF square plus BD square and plus CE square. And second part also here, second part is AF square plus BD square plus CE square, that is equal to AE square plus CD square and plus BF square. These 2 parts we have to prove. Okay, now for this construction जरूरत है नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर्स गिवन है. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रूफ. फर्स्ट पार्ट फॉर दिस, here see now there are 6 right triangles, just like from D. OD is perpendicular, so there are 2 right triangles, triangle ODB and triangle ODC. So which triangle we have to select? Here we have to prove in first part AF, BD and CE. So now AF, this side AF is in triangle OFA में. Clear? And second one is BD. So BD किस में है? BD इस triangle में आ जाएगी OBD में. And next is CE. So CE बेस किस में आ रहा है? OEC में. तो इन तीनों triangles में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है. सो इन राइट ट्राइंगल, एक ही लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ. इन राइट ट्राइंगल फर्स्ट क्या है? AF. तो AF किस में आ रहा है? AF दिस वन, यानी कि AFO या OFA. इन ट्राइंगल OFA. सेकेंड ट्राइंगल हमने लिया है, एक ही बार में दोनों ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं, तीनों ट्राइंगल. BD किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, मीन्स ODB. राइट ट्राइंगल ODB.
और थर्ड ट्राइंगल कौन सा आ रहा है, सी ई, सी ई वाला हो गया, मीन्स ओ ई सी, इन ट्राइंगल ओ ई सी। इन तीनों में हमें क्या यूज़ करनी है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए मीन्स वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओ एफ ए देखिए ट्राइंगल, ये है ओ एफ ए ना, ओ एफ ए, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 के सामने मीन्स ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ दीज टू स्क्वायर्स, मीन्स वी कैन राइट ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। कैन बी राइट बाई दिस वे, दिस इज इक्वेशन 1 वी आर एज्यूमिंग। सेकेंड क्या था, बी डी, सेकेंड प्रूफ में देखते जाओ, उसके अकॉर्डिंग करो। बी डी किस में आ रहा था, ट्राइंगल कौन सा था हमारा, ओ डी बी, ओ डी बी ई वाला ट्राइंगल है, तो इसके लिए ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो वी आर राइटिंग ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ थर्ड वन सी मीन्स ओ ई सी में, सो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 3। Now these three equations we are using by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ किया। नाउ अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, देखो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर तीनों प्लस में आ जाएंगे। देखिए यहाँ तीनों प्लस में हैं, क्लियर। ये माइनस में जरूर है, लेकिन ये टर्म्स अगर इधर वाली राइट वाली अगर लिफ्ट में जाए तो माइनस में हो जाएंगी। और ये टर्म्स भी देखो, ए एफ बी डी सी तीनों आर एच एस में गए प्लस में, इट मीन्स हमें क्या करना है, तीनों इक्वेशन को प्लस करना है। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। जब तीनों इक्वेशन को प्लस किया तो हमें क्या मिला, देखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, पहले इन तीनों को लिख दे रहे हैं, ओ एफ स्क्वायर क्या मिला पहले, ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, और प्लस ये वाला ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड प्लस सी ई स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ये तीनों टर्म्स जो ओ डी ओ ई ओ एफ हैं, ये वाली तीन टर्म्स, इनको हमें लेफ्ट में ले आना, माइनस में आ जाएगा, और वही हमें प्रूफ करना है। तो इट इम्प्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, माइनस का पहले में क्या चाहिए, ओ डी फिर ओ ई फिर ओ एफ, नो प्रॉब्लम, ओ डी को पहले लिख लो। सो माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, क्लियर। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, राइट साइड में आपके पास क्या बचा, देखिए ए एफ बचा, ये इक्वल का साइन है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एंड प्लस सी ई स्क्वायर, यही आपका प्रूफ हो गया। और इसको हम इक्वेशन 4 मान ले रहे हैं, क्योंकि आगे में सेकंड पार्ट में इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ फॉर सेकंड पार्ट वी हैव टू प्रूव ए ई सी डी एंड बी एफ, अगेन हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब देखिए बेस हमें वो ट्राइंगल चेंज हो जाएंगे, कैसे, अब हमें क्या लेना, ए ई, तो देखो ई वाले पॉइंट से ए ई कहाँ रहा है, इस वाले ट्राइंगल में, जो बचे हुए ट्राइंगल उन तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। सो नाउ सेकंड पार्ट, इन राइट ट्राइंगल फर्स्ट हमने लिया ट्राइंगल ओ ई ए, सेकेंड ट्राइंगल हमने लिया कौन सा है, अब ए एफ सी डी आ रहा है इसमें, मीन्स ओ डी सी में, इन ट्राइंगल ओ डी सी। अगला आ रहा है बी एफ, यानी कि आ रहा है ट्राइंगल ओ एफ बी, अगेन सेम पाइथागोरस थ्योरम। सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन फर्स्ट ट्राइंगल ओ ई ए, सो ओ ई ए ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ओ ई ए पाइथागोरस लगाएंगे तो हाइपोटेनस क्या हुआ, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिमिलरली फॉर ऑल ट्राइंगल्स। सो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। सेम है ट्राइंगल ओ डी सी में, तो ओ डी सी मीन्स ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। नेक्स्ट इज बी एफ, मीन्स इस ट्राइंगल में आ रहा है ओ एफ बी में, सो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब 4 इक्वेशन तक आ गया, तो इसे हमने इक्वेशन 5 कह दिया, इसको 6 इक्वेशन और इसको 7th इक्वेशन। अगेन बाय विच थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर। नाउ वी हैव टू ऐड ऑल दीज इक्वेशंस 4, 5, 6, 7। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7, तीनों को प्लस कर दीजिए। सो वी हैव ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ई स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, तीनों प्लस हो गई।
इधर तीनों इनको प्लस कर दीजिए। सो ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर एंड प्लस ई एफ स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये तीनों टर्म्स माइनस में चाहिए इधर, तो इनको इधर ले आओ। अब मैं इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। क्या, ओ ए स्क्वायर को पहले लिखा, फिर ओ बी स्क्वायर को पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है। सो प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी को पहले लिख लिया, माइनस ओ ई को फिर लिख दिया, एंड देन ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा, ये तीनों टर्म्स ये ऐसे ही रहेंगी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर एंड प्लस बी एफ स्क्वायर। इक्वेशन कौन सी आएगी, 7 तक आ गई, सो इट इज इक्वेशन 8। नाउ सीधा इक्वेशन 4 एंड 8। 4 और 8 में देखिए LHS इसमें आ रहा है, सारी टर्म्स 6 टर्म्स, और देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो 4 थी उसमें भी यही सारी टर्म्स LHS में आ रही हैं, तो दोनों LHS सेम है, इट मीन्स देयर RHS शुड बी इक्वल, और वही हमें प्रूफ भी करना है सेकंड पार्ट में। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 क्या मिला हमें, तो फोर्थ इक्वेशन की RHS क्या थी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और 8th इक्वेशन की RHS ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना था।